This is a 6-year-old child, and he's presented in emergency ward with history of fall, and he got right forearm deformity. And on examination, there was no peripheral neurovascular deficit. These are the X-rays on presentation, and we can see there is a fracture of radius and ulna, and there is a dislocation of radial head also. What I did, I just give a small sedation in emergency ward. I just manipulated it, and this was just only this traction and contraction. These are the post-reduction axes. And in axis, if you can see, all the bones are aligned, but there is still dislocation of the radial head. So I just plan to take in theater. So in operation theater, again, I give manipulation. But again, this radial head is not reduced. This manipulation was just only traction and counter-traction. Then I think that this maybe the proximal fragment is a free fragment. That is why it is not reducing. So I just put a Nelson nail in this radius. And even after putting radius, that Nelson nail into radius, but still radial head is not reduced. Just my question is, what is the reason this radial head is not reduced? Rupture of annular ligament or interposition of soft tissue can be one of the reasons. सर आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको रेडियल हेड रिड्यूस नहीं लग रहा है, इट्स इम्पोर्टेंट कि हम उस वक्त ही आर्थोग्राफी कर देते तो उसमें ये तो इसमें तो डिस्लोकेटेड नजर आ रहा है ना, ये इवन आफ्टर मैनिपुलेशन आफ्टर पुटिंग नेल्सन नेल स्टिल देयर वाज सेम कंडीशन, सो आई डोंट हैव फॉर ऑपरेटिव एक्स। सईद का कहना ये है कि आर्थोग्राम का मकसद तो ये है ना कि वहां पे देखनी है कि ऑब्स्ट्रक्शन क्या है। आर्थोग्राम इमीडिएट अगर हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ये मतलब एक सजेशन है और ये करता रहता है, बहुत अच्छी सजेशन भी है। तो क्वेश्चन था कि व्हाई इट वाज नॉट रिड्यूस, तो दो एलिमेंट आए अभी तक के जी सॉफ्ट टिश्यू इंटरपोजिशन बिकॉज ऑफ रप्चर एंड टू कोप विद हिज आर्थोग्राम। अब मैं वहां पे थिएटर में काफी परेशान हुआ कि क्या मसला हो गया। So then I realized that there is actually this is the green stick fracture of ulna. This fracture is incomplete, and there is a ulna bowing is there. So that is due to this bowing. So what happened? I just manipulated in a coronal plane, and I completed this fracture, this ulna fracture, which was basically green stick fracture, and the angulation is there. I just break this one. Although Nelson nail was there, but still I was able to put some force. Once his ulna is fractured completely, this suddenly this reduction of the this radial head. This was a post-op X-ray with a well-aligned radial head, complete fracture of the ulna. Although maybe if I do before that, then don't need to put this Nelson nail as well. But initially I could not identify this problem. So the take-home message is that never underestimate green stick fractures and must complete to achieve the desired direction. Although this is a very basic learning from day one, but still we miss these things and we end up with problems. So here is the case with the 6 years acute fracture mantigua and grossly displaced radial head, and fracture of ulna was incomplete, green stick and radius was complete. So he tried it, Nancy was placed, but radial head could not be reduced. There were two suggestions. One was there is maybe interposition of the capsule of the radial annular ligament, and other was the suggestion of arthrogram because there was no reduction. There is a learning here कि जो हमारे पास हमारी टीचिंग भी रही है कि always see the green stick must be refractured, complete fracture, because of the memory of the fracture, it rebounds back to the fracture position. So surgeon opted for the ulna to break it, and he got reduced it without any further problem. So any discussion, continue please. Yes, good case. Yes, even not in a green stick fracture, but sometimes you just see the plastic deformation of the ulna that could lead the dislocation of the radial head. And sometimes it is very subtle. So we have to really closely see that there is something wrong with the ulna that leads to the radial head dislocation. Yeah, it's a green stick fracture, and even the plastic deformation can lead to the Monteggia fracture. And again, at times we might have to do the osteotomy and
angulation to bring back into position. Yeah. And this is even written in the literature as well. Okay, sometimes there is a green stick fracture of a ulna and the dislocation without fracture of the radius. And patient given the plaster seems there is a reduction and somehow looks like a reduction anterior होती है ज्यादातर नजर नहीं आती. फिर वो वापस आ जाते हैं पेशेंट कुछ सालों के बाद कि जी या कुछ महीनों के बाद ये रेडियल हेड जो है परसिस्टेंटली बाहर डिस्पाइट के वो फ्रैक्चर नहीं होता यहाँ तो वो फ्रैक्चर भी है. तो ये फिर उसी में ये लर्निंग कर्व में ये आता है हमारे लिए भी हमारे जूनियर्स के लिए भी. तो ऑलवेज रिकंसीडर टू सी कि अल्ना क्या की पोजीशन क्या है क्योंकि अल्ना डिफॉर्मेशन अगर रहती है तो वो परसिस्ट करती है रेडियल हेड डिसलोकेशन के लिए. ऑप्शन पे थोड़ा सा एलोबरेट करें सईद आप आर्थोग्राफी वाले के. दैट इज आल्सो अ गुड ऑप्शन. Sir, I agree with all the points elaborated by Sir Javed Saab and Professor Anisuddin Bhatti Saab. I think it's very important कि अगर plastic deformation भी हो ना, so we must fix it. अगर हमें radial head dislocate लग रहा है, ठीक है. And it's always the ulna कि हम ulna को first fix करें या उसकी जो plastic deformation है उसको rush pin के through या K wire के through उसको सीधा करें. And most of the time in acute cases वो radial head अपनी जगह पे आ जाता है. बट आई थिंक अगर हम सारे पीडियाट्रिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं आर्थोग्राफी कोई डिफिकल्ट वो प्रोसीजर नहीं है. आर्थोग्राफी से अगर हमें मतलब एटलीस्ट जो इस केस में भी अगर आखिर में हमें एक आर्थोग्राफी करनी चाहिए सो वी वुड बी कि हम श्योर हो जाए कि वाकई जो है ना जॉइंट में कुछ नहीं है और रेडियल हेड इज ऑपोजिट टू कैपिटेलम. इवन आई यूज आर्थोग्राफी जो हमारे अनडिस्प्लेस या मिनिमली डिस्प्लेस लैटरल कंडाइल फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें भी आप जो है ना उसको आर्थोग्राफी करें कि भाई फ्रैक्चर एक्सटेंड तो नहीं कर रहा. एंड समटाइम्स जो बड़े छोटे बच्चों में जिसमें सुपरकंडाइलर फ्रैक्चर हो जाता है ठीक है और इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हमें पता नहीं लग रहा कि अभी कार्टिलेजनस पार्ट किधर पड़ा हुआ है स्पेशली ट्रांसफाइजल सेपरेशन में. उसमें भी आर्थोग्राफी जो है ना आप करें तो आपको एग्जैक्टली जो है ना जो कार्टिलेजनस जॉइंट है वो नजर आ जाता है ठीक है. एंड देन इट हेल्प्स इन रिडक्शन. एक चीज को और एलिबोरेट हमको चाहिए कि हम अक्सर कहते हैं कि रेडियल एक्सिस शुड क्रॉस दी कैपिचुलम. तो ये एक्सिस भी किस पोजीशंस में प्रोनेशन सुपिनेशन एपी लेटरल में करना चाहिए या बस एक ही पोजीशन में करके देख ले तो बेहतरीन खुश हो जाते हैं हम लोग. And epilateral both and in supination. इस पर्टिकुलर केस जो आसिफ ने प्रेजेंट किया है, if he has recognized that there is a green stick fracture of ulna, he managed it, he reduced it. If it is stable, then I don't think there is a need of orthogram. अगर फिर भी unstable रहता है, तो then he should have gone for orthogram. एक थाट है और ये प्रैक्टिस होती है आर्थोग्राम वाली और इसको ऐसे हम रिजेक्ट नहीं कर सकते. कहने का मकसद ये है कि अगर सपोज आप फील कर रहे हैं कि उस वक्त भी वापस स्प्रंग बैक होता है तो आप एक्सिस ड्रा कर ले. अगर उसके बावजूद भी एक्सिस प्रॉपर नहीं है तो आर्थोग्राम करके भी देख ले. तो दिस इज जी सर, फॉर द ट्रेनीज एंड फॉर द यंग surgeons like us, so we are talking about the arthrogram and we do it in the DDH also for saying the concentric reduction of the hip as well. So my point is that the trainees didn't know which dye will be used for the arthrogram, urographene, other dye, or which needle should be used, what is the depth and gauge of the needle, and what will be the ideal anatomical point to do the this arthrogram in the theater under the SIA. So this will be a very good presentation if someone is willing to give us a brief introduction of this arthrogram in different joints. So we will be able to see the arthrogram in our practice and able to do it. Usually हम यूरोग्राफिन यूज करते हैं ठीक है एंड वी डाइल्यूटेड इनटू मैं तो इस तरह करता हूँ कि 2 cc यूरोग्राफिन लेता हूँ एंड देन ऐड another 4 cc तो टोटल 6 cc में हमारा जो है ना ये 2 cc हम डालते हैं विद नॉर्मल सलाइन मिक्सिंग. अच्छा यूजुअली फॉर द हिप जॉइंट मीडियल साइड पे हम यूज करते हैं. फॉर द एल्बो इट्स वेरी इजी. आप लैटरल साइड या मीडियल साइड ऑफ द ओलिक्रनान आप ओलिक्रनान को फील करें ठीक है और मीडियल और लैटरल साइड पे आप नीडल डालें और एंड देन यू इंजेक्ट इट.
फॉर द लार्ज जॉइंट लाइक हिप एंड नी हम जो है ना स्पाइनल नीडल्स वगैरह यूज करते हैं। एंड फॉर द एल्बो और अदर स्मॉल जॉइंट्स ठीक है, उसके लिए आप इवन जो 10 सीसी की ग्रीन सिरिंज होती है वी कैन यूज दैट। और इंटरप्रिटेशन जो है ना इट्स वेरी इजी, जिस तरह हम एक्सरे इंटरप्रेट करते हैं उसी तरह हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। ये जॉइंट लाइन को डीलाइनेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, इट्स अ वेरी सिंपल। और को वी कैन इजीली, मतलब है कि हमें जॉइंट प्रॉपरली जॉइंट लाइन नजर आ जाता है, ठीक है। एंड इट सिग्निफिकेंटली चेंजेस अवर, जो हमारा मैनेजमेंट प्लान है वो उसको बहुत ही सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है, ठीक है। एंड इवन वी बिकम वेरी मच श्योर कि भाई अब जैसे मैं मोंटीजे अगर एक्यूट जब भी करता हूँ, ठीक है, इवन क्रॉनिक करता हूँ, और अगर मैंने रेडियो कैपिटेलर जॉइंट नहीं खोला तो मैं उसको ऑर्थोग्राफी के साथ लाजमी कंफर्म करता हूँ। बिकॉज हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मैं हांगकांग में था तो उधर जो है ना वो कहते थे कि अगर मोंटीजिया मिस हो गया ना तो इट्स अ नेग्लिजेंस। तो मेरे ख्याल में अगर हम अपने आप को पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं तो हमसे जो है ना कुछ चीजें बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। वी मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर एडल्ट सर्जन। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा केस था। सर मैं तो मोंटीजिया पे मैंने बहुत काम किया है, और ये मोंटीजिया वेरिएंट में आता है कि बोथ रेडियस अल्ना फ्रैक्चर्स एंड रेडियल हेड डिसलोकेशन। रेडियस और अल्ना फ्रैक्चर्स में बेसिक थिंग इज टू विजुअलाइज जॉइंट अबव एंड जॉइंट बिलो इन एनी फ्रैक्चर्स। दूसरा ये है कि हमने उसको आइडेंटिफाई किया। अल्ना मैं तो हर वक्त कहता हूं कि हम के वायर्स और इंट्रामेडुलरी फिक्सेशन ना करें, वो हमारे फ्रैक्चर को रिड्यूस करता है। एक्यूट सेटिंग में अगर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो तो ठीक है, थोड़ा सा डिलेड हो या कोई ऑब्लिक या स्पाइरल फ्रैक्चर या कम्बिनेशन हो तो के वायर आपकी अल्ना, क्योंकि द फर्स्ट थिंग इज टू मेंटेन द अल्नर लेंथ, तो आपकी लेंथ को मेंटेन नहीं करता। दूसरी बात इसमें इस दूसरी बात यह है कि हमने चलो अल्ना को फिक्स किया, उसको थोड़ी सी हमने लेंथनिंग भी की, लेंथन पोजीशन में फिक्स किया डिस्ट्रैक्शन मोड में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह था कि इसमें रेडियस भी फ्रैक्चर था। तो रेडियस भी अगर हम वो भी हमने इंट्रामेडुलरी फिक्सेशन की तो उस पे भी वो प्रेशर नहीं आ रहा था कि हम अल्ना की रिड्यूस करें और रेडियल हेड अंदर आ रहा। तो अगर हम अल्ना की प्लेटिंग करते साथ में रेडियस की प्लेटिंग करते, बेशक 4 होल प्लेट हो, बच्चा छोटा है, तो उस पे वो अल्नर लेंथनिंग और एंगुलेशन की हम जो करेक्शन ऑस्टियोटमी और उसकी वो थी ना, उस पे प्रेशर आ जाता तो शायद वो रिड्यूस कर लेता। अगर रिड्यूस हो गए उसको हम इमेज में भी चेक कर सकते हैं, क्लिनिकली भी चेक कर सकते हैं। इफ इट्स नॉट रिड्यूस देन वी हैव नो डाउट एंड वी ओपन अप द रेडियस द रेडियल हेड, और उसको हम अंडर विजन रिड्यूस करें। उसमें जो लिमिटिंग फैक्टर होता है, इधर तो एनुलर लिगामेंट इंट्रैप्ट होता है या कैप्सूल इंट्रैप्ट होता है, दोनों सूरतों में आपको जॉइंट ओपन करना होता है। तो मेरे हिसाब में इसमें ऑर्थोग्राफी तो अच्छी बात है बहुत, बट इट वोंट चेंज द मैनेजमेंट प्लान मच। लेकिन ऑर्थोग्राफी इज अ मस्ट, हम करते भी हैं, हर जॉइंट में करते हैं और उससे हमें काफी आइडिया हो जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मैनेजमेंट इतनी चेंज नहीं होती। बस जस्ट एक ब्रीफ क्वेरी थी मेरी सर कि आर्थ्रोग्राफी पर आप तो सर अंडरस्टैंडेबल है कि थिएटर में आप कर रहे हैं सर, और रेडियल हेड इज नॉट रिड्यूसिंग तो आप कर लेते हैं। माय क्वेरी इज सर कि अगर ऐसे केसेस जाहिर है कि ओपीडी में आते हैं तो डॉक्टर सईद सर के व्हाट वुड यू प्रेफर के आई मीन वी गो फॉर ए सीटी विद 3D रिकंस्ट्रक्शन और वी वेट फॉर द चाइल्ड टू बी ऑपरेटेड अपॉन ए थिएटर और वहां पे हम फिर इनकी आर्थोग्राफी करें? व्हाट मोडेलिटी वुड यू प्रेफर इन दिस केस सर? मैं तो सर ऑर्थोग्राफी प्रेफर करूंगा इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द सीटी स्कैन, बिकॉज सीटी स्कैन हमें बोनी एनाटमी बताएगा, इट विल नॉट एलेबोरेट प्रॉपरली अबाउट द कार्टिलेजनस पार्ट। और ऑर्थोग्राफी की ब्यूटी ये है कि इसमें हमें जो है ना कार्टिलेजनस पार्ट ऑफ द बोन नजर आ जाते हैं, ठीक है। सो आई थिंक ऑर्थोग्राफी इट्स अ स्मॉल प्रोसीजर और आप केस में कर सकते हैं। इट्स नॉट समथिंग के और इट्स नॉट मच टाइम कंज्यूमिंग, हार्डली टेक अ फ्यू मिनट्स। जी सर, सलाम अलैकुम। मैं असल में ये बात देखें, ऑर्थोग्राफी के ऊपर काफी बात हो गई, हमने सारी उम्र नहीं किया। ये कंपैरिजन किया जाए कि अगर जिनमें ऑर्थोग्राफी नहीं किया गया उनमें से कितने % ऐसे थे जिनका सॉफ्ट टिश्यू इंटरपोजिशन रह गई और उसके बाद जो है ना वो प्रॉब्लम उस वजह से हुई। तो एक कंपैरेटिव स्टडी हो तो हम जरा कन्विंस हो जाएं कि ये हमने करना है।
अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये एक अनयूजुअल केस है, ये बहुत अच्छा केस प्रेजेंट हुआ है। ये दिस इज वन बोन फ्रैक्चर विद वन डिसलोकेशन। इसी तरह मोंटिजिया होता है, इसी तरह गलियार्ड्स होता है, बट यहाँ पे प्राइमरीली जो है ना, जो पहला फ्रैक्चर नजर आया सर्जन को, वो रेडियस नजर आया, और जब रेडियस नजर आएगा तो रेडियस के साथ वो प्रॉक्सिमल उसके जहन से निकल गया। अब जब रिव्यू में देखा तो जब वो गायब था तो गौर करने में पता लगा कि ये फ्रैक्चर अल्ना बी है, तो ये इसको हम मोंटिजिया वेरिएंट कहेंगे। तो प्राइमरीली जो है ना मोंटिजिया वेरिएंट के जुमरे में ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वी शुड कीप आवर आइज ऑलवेज ओपन कि एक बोन है या वाकई दूसरी बोन भी है, और अगर एक बोन है और रेडियस है और उसके साथ कोई अनयूजुअल चीज नजर आ रही है तो दूसरी को फ्रैक्चर होना ही है।